اور اب خبروں کی تفصیل۔ آڑا کھارا امام صاحب شوپیاں میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان انکاؤنٹر ہوا ہے۔ انکاؤنٹر میں حزب المجاہدین کے سرکردہ کمانڈر سمیت 3 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ آج صبح فورسز نے اس وقت علاقے کو محاصرے میں لیا تھا جب انہیں علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق اطلاع ملی تھی۔ محاصرے کے دوران ایک رہائشی مکان میں چھپے ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی۔ کافی دیر تک جاری رہنے والی اس گولہ باری میں 3 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے۔ اس دوران فوج کا ایک جوان بھی زخمی ہو گیا۔ ہلاک شدہ ملیٹنٹوں کی شناخت حزب کمانڈر ڈوگری پورا پلوامہ کے لطیف ٹائیگر، مولو چھترا گام شوپیاں کے طارق مولوی اور چھوٹی گام شوپیاں کے شارق نینگرو کے طور پر ہوئی ہے۔ ملیٹنٹوں کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ اس گولہ باری میں ایک رہائشی مکان بھی تباہ ہوا ہے۔ انکاؤنٹر کے دوران فورسز اور مشتعل افراد کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ ان میں چند افراد زخمی ہو گئے۔ ان میں ایک نوجوان گولی لگنے سے زخمی ہوا ہے۔ اسے علاج معالجے کے لیے سری نگر منتقل کیا گیا ہے۔ انکاؤنٹر کے بعد ضلع شوپیاں میں موبائل انٹرنیٹ خدمات کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ادھر پونچھ کے شاہپور میں پاکستان نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستانی فوجی چوکیوں سمیت کئی رہائشی علاقوں پر بلا اشتعال گولہ باری کی۔ پاکستان بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے۔ اس کے سبب لوگوں میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے۔ فوج کی جانب سے پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ ریاستی کانگریس کے صدر اور پارٹی کے امیدوار غلام احمد میر نے کچھ سینئر لیڈران کے ہمراہ پامپور کے لیتاپورا، لدھو، کھریو، ستپخرن کا دورہ کیا۔ انہوں نے ورکرز کنونشن منعقد کیے۔ انہوں نے ورکروں سے ان کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ میر نے کہا کہ وہ پارٹی کے منشور کو آگے بڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو وہ جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ یہاں کی منفرد پہچان کو بنائے رکھنے میں کلیدی رول ادا کریں گے۔ انہوں نے نیشنل ہائی وے پر پابندی کے حوالے سے بتایا کہ وہ اولین ترجیح میں اس پابندی کو ہٹانے کا کام کریں گے۔ جو لوگوں کا ریسپانس وہاں پر رہا ہے، اور کشمیری ویسے بھی سیاسی طور پر بہت ہوشیار ہے، اور ان کو ہم لیڈروں سے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ یہ آج کا جو ووٹ ہے یہ کس لیے ہم ڈال رہے ہیں، اور زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سب کو معلوم ہے ملک میں جو سرکار ہے وہ بدلنی چاہیے، اور بدلنے کے لیے کون سی پارٹی اس کو بدل سکتی ہے وہ بھی ان کے کمپلیٹ سمجھ میں ہے کہ اس میں کوئی چھوٹی موٹی پارٹی ایک سیٹ والے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اگر اس میں بدلنے کی ضرورت ہے، دیش میں سیکولر سرکار بنانے کی ضرورت ہے، وہ انڈین نیشنل کانگریس راہل گاندھی کی قیادت میں ہی کر سکتا ہے۔ بیسیکلی جن ایریاز میں ہو کے آیا، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں رہا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے حساب سے نمائندے بنائے، مگر ان نمائندوں نے اس طریقے سے دھیان نہیں دیا ہے جو یہاں کے لوگوں کے روزمرہ کے مسائل ہیں، جس پر ان کا روزگار چلتا ہے، جس پر ان کا پریوار چلتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں پامپور اور اس کھریو ایریا کو بہت ہی نیگلیکٹ کیا گیا ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے امیدوار ریٹائرڈ جسٹس حسنین مسعودی نے پامپور کے لال پورہ، میج، چندھار، شار، لدھو اور کدلبل پامپور کا دورہ کر کے ورکرز کنونشن منعقد کیے۔ انہوں نے ورکروں سے کہا کہ وہ پارٹی کو مضبوط بنانے میں اپنا رول ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ بائیکاٹ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو ووٹ دے کر اپنے صحیح نمائندے کو منتخب کرنا چاہیے تاکہ جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی ممکن ہو سکے۔ مسعودی نے کہا ہے کہ ان کی جماعت جموں کشمیر کے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نوجوانوں کو روزگار کے مواقع اور تحفظ فراہم کرنے کی پابند ہے۔ کرنا ہے 1953 کی پوزیشن، صدر ریاست اور وزیر اعظم کی پوزیشن۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تب تک جب تک بنیادی مسئلہ جو کشمیر کا ہے وہ سیاسی مسئلہ ہے، صرف فری کی بات چیت ہونی چاہیے۔ ہم تو حکومت ہند
हुकूमत हिंदुस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और यहाँ की जो क़यादत उनके दरमियान बातचीत होनी चाहिए, ताकि इसका एक मुनसिफाना और हतमी हल निकल आए। कब तक, कितनी देर तक हम इसमें इस सब में रहेंगे, कब तक हम अपने नौजवानों की हिमायतें अपने कांधों पर उठाएंगे? हाँ करना है, और जब तक मसले का हल होगा तब तक हमें खुदमुख्तारी बाजियाब करनी है और खुदमुख्तारी की हिफाजत करनी है। अनंतनाग से बीजेपी के उम्मीदवार सोफी यूसुफ ने त्राल और पांपुर का दौरा किया। उनके हमरा बीजेपी के सीनियर लीडर अवतार सिंह और लतीफ अहमद भट्ट भी मौजूद रहे। सोफी ने वर्करों को उनके हक में वोट डालने पर जोर दिया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि ये पार्टियां दफा 35 से और 370 के नाम पर लोगों से वोट बटोर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो इख्तिदार में आते हैं तो जेलों में बंद कैदियों को रिहा करवाएंगे। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने कस्बा पांपुर और कस्बा त्राल को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी हुकूमत मरकज में आती है तो वो जनूबी कश्मीर में तरक्की का नया दौर शुरू करेंगे। और मैं भी आज आया हूँ, कल शुपिया में था, तो लोगों का बहुत बड़ा रेस्पॉन्स है। और जैसे कि मैंने अनंतनाग से भी और कुलगाम से भी मैं विनर हूँ, मैं जीत रहा हूँ। जो आपका मीडिया का एग्जिट पोल है, जो एजेंसीज का एग्जिट पोल है, और मेरी खुद की असेसमेंट जो है, मैं इस वक्त लीड कर रहा हूँ। और यहाँ पुलवामा और शुपियाँ एज ए एमएलसी मैंने नौकराजी की है लोगों की। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट्स थी, जहाँ जहाँ जिसको घर बनाना था, मैंने वहाँ बना लिया है। ये जो पार्लियामेंट सीट है, ये 16 कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें फंड भी बहुत ज़्यादा होता है, और इंशाअल्लाह ताला मैंने इनके साथ वादा किया है, मैं दोबारा आऊँगा यहाँ और इनके घर बनाऊँगा। पीडीपी लीडर और एमएलसी जफर इकबाल मनहास ने कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने वादी कश्मीर को सियासी अखाड़ा बनाया है। उनका कहना है कि उसकी वजह से यहां के लोग परेशान हैं। मनहास ने आज शोपियां के करेवा शादाब में घर घर जाकर पार्टी के हक में मुहिम चलाई। बुर्के पर पाबंदी से मुतालिक शिवसेना की मांग पर मनहास ने कहा कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और यहां के आईन के तहत हर शख्स अपने तरीके से जिंदगी गुजार सकता है। कश्मीर को उन्होंने एक अखाड़ा बनाया हुआ है, बदकिस्मती है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इसमें दोनों मुल्क जो हमारे हैं, मतलब हमारा अपना मुल्क जो हिंदुस्तान है ये भी और पाकिस्तान भी, तो इन्होंने इसको अखाड़ा तो बनाया ही है। हर बार कश्मीर के नाम पर यह सियासत हो रही है और कश्मीर एक कन्फ्लिक्ट जोन बन गया है। तो इसी के नाम पर सारी पॉलिटिक्स हो रही है, जिसका बराह रास्त नेगेटिव असर कश्मीर पर, अहले कश्मीर पर पड़ रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंटैक्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को इस बात का हक दिया गया है कि वो अपनी मजहबी आज़ादी का कैसे इस्तेमाल करें, वो अपनी इबादत कैसे करें, वो क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहनें। तो जहाँ तक ये जैसे आप बुर्का कह रहे हैं, नकाब कह रहे हैं, जिसका पर्दे से ताल्लुक़ है, तो ये कौन इसको कैसे इस्तेमाल करता है ये उनका काम है। अनफॉर्चुनेटली इसको भी सियासी इसको रंगत दी जा रही है। लद्दाख पार्लिमानी सीट के लिए आजाद उम्मीदवार सज्जाद हुसैन करगिली ने द्रास में एक मेगा रैली मुनाकिद की। हजारों लोगों ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। सज्जाद करगिली के हमरा LAHDC के चेयरमैन फिरोज अहमद खान, PDP के जिला सदर गुलजार हुसैन कांचू, LAHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स आगाज सैयद अब्बास रिजवी, NC लीडर कमर अली आखून और कई मजहबी लीडरान थे। सज्जाद हुसैन करगिली ने लोगों से इन्हें कामयाब बनाने की अपील करते हुए कहा कि वो उनके तमाम मसाइल की जानकारी रखते हैं। वाज़ेह रहे कि आज़ाद उम्मीदवार सज्जाद हुसैन करगिली को NC, PDP, इस्लामिया स्कूल और कई दीगर मजहबी जमातों की हिमायत हासिल है। कांग्रेस का शुरू किया हुआ खेल है। अदरवाइज इस वक्त कांग्रेस ने जो मैंडेट दिया हुआ है लेह में, तो एक प्रॉक्सी कैंडिडेट को करगिल में खड़ा किया है। तो ये एक शुरुआत है, उसी की तरफ एक उनका एक स्टेप है। तो ये कांग्रेस का ये बोया हुआ बीज है, तो जो करगिल और लेह के अवाम के बीच में हालांकि बहुत कुदरतें फैला रहा है। देखिए 2014 के हालात कुछ मुख्तलिफ थे। उस वक्त करबलाई साहब के पास कौंसल था और एक वीक कैंडिडेट को लेकर के वो मैदान में उतरे थे। इस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल की सबसे मजबूत पार्टी है, PDP हमारे साथ खड़ी है, इस्लामिया स्कूल है, अंजुमन साहिब ज़मान है, और ये अहले सुन्नत और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो नुमाइंदे हैं, नूर बख्शिया कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी के लोग हैं। करबलाई साहब इन सब की भी तौहीन करते हुए नज़र आते हैं कि भाई इनके पास तो कुछ नहीं है, ये लोग कुछ नहीं है। तो करबलाई साहब को अपने अलावा
पीपल्स कॉन्फ्रेंस वादी में पार्लिमानी इंतखाबात में शानदार जीत दर्ज करेगी। इन बातों का इजहार पार्टी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने हंदवाड़ा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों के खिलाफ वोट का इस्तेमाल किया है। लोन ने कहा कि लोग रिवायती पार्टियों की सियासत से तंग आ चुके हैं और बदलाव के हक में है। उन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए बुनियादी सतह पर काम करें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर बशीर अहमद डार ने भी लोगों से खिताब किया। इस बीच पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल गनी वकील का कहना है कि दफा 370 हटाना मुल्क मुखालिफ कार्रवाई होगी। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को दफा 370 के मामले पर निशाना साधा। वकील का कहना है कि कांग्रेस और रियासती पार्टियों ने रियासत की खुसूसी पोजीशन को खोखला कर दिया है। 70 रियासत जम्मू कश्मीर और मुल्क के दरमियान एक ब्रिज है और जो भी ताकत या पार्टी इस ब्रिज को खत्म करने की कोशिश में है या कोशिश की बातें कर रहे हैं, एक तो ये बातें मज़ाक खेज है और दूसरे वो मुल्क के दोस्त नहीं हैं, दुश्मन हैं। क्योंकि अगर किसी पार्टी ने भी इसको कमजोर करने की कोशिश की तो रियासत जम्मू कश्मीर खुद ब खुद मुल्क से अलग हो जाएगा। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है, जो आर्टिकल 370 को तहफ़्फ़ुज़ की बातें करते हैं, ये भी मज़ाक खेज है। क्योंकि आज तक अगर किसी पार्टी ने ज्यादा नुकसान और खोखला किया है आर्टिकल 370 को, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है और कांग्रेस है। लिहाजा उनकी बातें कहना कि हम इसको तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, आज तक उन्होंने खोखला किया है, अभी क्या तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने अब उनके दुगली पॉलिसी को समझे हैं और मुझे यकीन है पीपल्स कॉन्फ्रेंस को वो मैंडेट देंगे जो लग रहा है, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस हर वो कदम उठाएगी जिससे इस आर्टिकल की तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो और उन ताकतों का डट कर मुकाबला करेगी जो ताकतें इस ब्रिज को खत्म करने के पीछे हैं। साबिक वजीर व बीजेपी के सीनियर लीडर अब्दुल गनी कोहली ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि रियासत में नवंबर-दिसंबर से पहले असेंबली इंतखाबात का इनकाद न कराया जाए। कोहली जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खाना बदोश और गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता अफराद सरमा के दौरान अपने इलाकों से दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कोहली ने एनसी, पीडीपी और दीगर सियासी जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने असेंबली इंतखाबात को फौरी तौर मुनाकिद कराने के वक्त ये मामला जहन में नहीं रखा। ये रास्ते में इन्होंने मूविंग स्टार्ट कर दी है और आप ही देखेंगे नेशनल हाईवे उनके भेड़ बकरी और वो लोग जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। तो मैं हैरान हूँ इस बात से कि जब हमारी गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन 4 वोटों का ख्याल रखता है। उधमपुर में एक जगह 4 वोट थे, पुलिस स्टेशन बना। दिल्ली में एक जगह 2 वोट थे, पुलिस स्टेशन बना। लेटेस्ट लद्दाख में एक जगह 6 वोट हैं, पुलिस स्टेशन बनता है। तो ये हज़ारों की तादाद में हमारे सामने जा रहे हैं। तो इनका क्या इलेक्शन कमीशन को ख्याल नहीं रखना चाहिए? क्या इन पार्टियों को ख्याल नहीं रखना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को इन बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में दे आर वेरी मच नेशनलिस्ट, इसमें तो शक ही नहीं है। तो जब उनको बीइंग नेशनलिस्ट और ये समझते हुए कि ये लोग जो हैं रास्ते में हैं, दे वोंट बी एबल टू कास्ट देयर वोट्स, तो राइट ऑफ वोट को इनको जो हमने मौका देना है वो तभी देंगे जब ये अपनी नेटिव प्लेस पे आएंगे। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। ये कहावत छेड़छाड़ और कत्ल की शिकार रोमाना जावेद के मामले पर सादिक आती है। 10 साल गुजर चुके हैं, ताहम रोमाना के अहले खाना आज तक इंसाफ के मुंतजिर हैं। देखिए श्रीनगर से न्यूज़ 18 की चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। मरहुमा रोमाना जावेद की वालिदा नईमा आज भी दीवार पर लगी अपनी लाडली की तस्वीर देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती हैं। अगरचे 10 साल गुजर चुके हैं, ताहम इस कुंबे के आंसू और इनकी परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बदनाम जमाना हिट एंड रन केस और इससे मुतासरा 17 साला रोमाना जावेद की। इस तरह का वाकया शायद वादी में पहली मर्तबा पेश आया हो। इसमें 2 नौजवानों ने रोमाना के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की थी तो रोमाना ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। ताहम बदले की आग में उन्होंने रोमाना को अपनी कार के नीचे रौंद डाला।
मामले पर कई रोज तक बहस मुबाहिसा हुए। ताहम आज रोमाना की 10वीं बरसी के मौके पर भी उसके अहले खाना इंसाफ के मुंतजिर हैं। अब भी उस बच्ची की तलाश में है। हम सोचते हैं कि शायद वो शाम को आ जाएगी। 10 साल हो गए लेकिन हमारे जख्म भरे नहीं। बच्ची का कत्ल दिन की रोशनी में हो गया। अगर इसका फैसला जल्द नहीं आएगा, 10 साल हो गए, हम तो सब्र कर रहे हैं, हम तो सब्र में पाएंगे आप। लेकिन खुद ही सोच लीजिए, अगर इसका जल्दी फैसला अब नहीं होगा या हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो फिर कौन बाप अपनी बेटी के लिए लड़ेगा? फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कौन समझेगा? हमारे जख्मों की नमकबाशी नहीं होनी चाहिए, अब हमारे जख्मों पर मरहम होना चाहिए। रोमाना की वालिदा अपनी बेटी के साथ पेश आए वाक़े से इस कदर सदमे में है कि उन्हें आज भी अपनी बेटी की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। नईमा का कहना है कि उनकी बेटी वापस तो नहीं लौट सकती, ताहम अगर उसके कसूरवारों को सजा दी जाती तो इस तरह के वाक़यात पर रोक लग सकती है। बर्दाश्त वनकस मूड मगर वुचान तम सनी जान जिगर मगर अम जितन यह गो दपान असी वापस वो क्या मगर बाकिन कोरिन खतर मिल अम अबरत थोड़ा बहुत अगर अगर इंसाफ मिल सा यी मैं वापस क्या तो मगर बाकिन हंद खतर अगर इंसाफ कर तो सह बाकिन खतर हिफाजत। इस वाक़े के 2 मुल्जिमीन में से एक जेल में है। ये केस अदालत में ज़ेर समाअत है। दूसरे मुल्जिम को नाबालिग होने की वजह से रिहा कर दिया गया है। गुज़िश्ता 1 दहाई से इस केस की ट्रायल जारी है। इस बीच कई जज सुबुकदोश भी हो गए, ताहम अहले खाना आज तक इंसाफ मिलने के ख्वाब देख रहे हैं। रोमाना के वालिद फिर भी नाउमीद नहीं है। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में केस की समाअत होगी और इन्हें इंसाफ मिलेगा। तारीख पर वो तो आपने डायलॉग सुना ही होगा, तारीख पर तारीख, वही तो अब तक चलता आ रहा है। बस कभी तो उसको बीमार दिखाते हैं, कभी उसको वहाँ पर लाते नहीं हैं उस मुलजिम को, तो फिर तारीखें बढ़ जाती है। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब नेक्स्ट हियरिंग जो होगी वो आखिरी हियरिंग होगी, उसके बाद जैसा अपना फैसला देगा। रोमाना जावेद के साथ पेश आए वाक़े जैसे भयानक जराइम वादी कश्मीर में कम देखे जाते हैं, ताहम होना यह चाहिए था कि कसूरवारों को फौरी सजा दी जाती ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश न आएं। उम्मीद है कि मुतासिरा खानदान को फौरी इंसाफ फराहम किया जाएगा और इनकी परेशानियां दूर की जाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। हुकूमत एलओसी पर पाकिस्तानी शेलिंग से मुतासिरा अफराद की हर मुमकिन मदद के बुलंद बांग दावे तो करती है, लेकिन जमीनी हकायक इसके बरक्स हैं। शेलिंग में माजूर हुई उड़ी की शकीला बेगम जिन मुश्किलात से गुजर रही हैं, इससे हुकूमत के दावों की कली खुल रही है। पेश है सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। जून 2017 में पाकिस्तानी शेलिंग में दर्दकोट उड़ी की शकीला बेगम जख्मी हो गई थी। इनका पैर मुतासिर हुआ है। ये किसी सहारे के बगैर चलने फिरने से कासिर हैं। शकीला बेगम की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने बलबूते पर अपना बेहतर इलाज करा सके। शकीला के शौहर का कहना है कि वो इमदाद के लिए सरकारी दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, लेकिन अब तक इन्हें हुकूमत की तरफ से मायूसी ही हाथ लगी है। 30 जून 2017 को शेलिंग में लगी इसको, आज तक कुछ भी नहीं दिया गवर्नमेंट वालों ने। किसी ने अपने माल में वैसे बेच कर मैंने इसका इलाज करवाया। बच्चा पढ़ता था 13वीं जमात में, उसको भी वो स्कूल भी छूट गया। बस मजदूरी करके माई को लेकर उधर डॉक्टरों के पास जाते हैं। डीसी हाउस फाइल पड़ी है मेरी तब से। क्या बोल रहे हैं वो बोलते हैं 30% है, इसको क्या देंगे? आपने देख लिया ये 30% का नुकसान है क्या है। शकीला कहती हैं कि इनको इलाज के लिए माल मवेशी तक बेचना पड़ गया है। इनका एक ही बेटा है जो अपनी तालीम तर्क करते हुए वालिदा के इलाज और दीगर अखराजात के लिए यौमिया उजरत पर काम कर रहा है। शकीला बेगम का कहना है कि हुकूमत
LOC पर गोलाबारी में मुतासरीन की बाज़ाबादकारी और मुफ्त इलाज के दावे तो करती है, लेकिन मकामी इंतजामिया के रवैये से इन्हें बेहद तकलीफ पहुंच रही है। खत्म हो गया पैर, उसके पीछे कोई पुछ नहीं अस्ती कखना मजदूरी पर मजदूरी हाड़ लासन आना मैं माओ दी दवाई टिकी कर। जब न्यूज़ 18 ने DC बारामूला से इस ज़िम्न में बात की तो उन्होंने मुतासिरा की मदद का यकीन दिलाया। आपने मेरी नोट्स में आज लाया है, मैं इंश्योर करूंगा 2-3 दिनों में इसका केस मंगवा करके जो भी ज़ाब्ते के तहत या कानून के तहत जो भी उसको हक बनता होगा वो उसको। DC बारामूला ने तो मदद का यकीन दिलाया है, अब देखना ये होगा कि कुछ अमली इक़दामात होंगे या नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने जिला में काफी अरसे से चल रहे ईंट के भट्टों, स्टोन क्रैशर्स, मिट्टी की खुदाई, रेत और बाजरी निकालने के गैर कानूनी कामों पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म जारी किया है। ये हुक्म उन्होंने बडगाम में एक मीटिंग के दौरान सादिर किया। जिला तरक्याती कमिश्नर सहरिश असगर ने हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर चल रहे ईंट के भट्टों को बंद करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस गैर कानूनी काम से यहाँ मुख्तलिफ शोबों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गाड़ियों को जब्त करने की हिदायत दी। पे भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, दैट पर्सन इज बुक्ड, और ऐसी कहीं पे भी हम अलाउ नहीं करेंगे। हमने कोई नए परमिशंस नहीं दिए हैं कहीं पर भी, इसलिए अगर इलीगल कहीं हो रही है दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में बहुत सीरियस है। हम पुलिस के ऑफिशियल्स के साथ भी आज हमने यही मीटिंग की कि इन सब चीज़ों को देखना है, चाहे वो रात में कर रहे हैं, चाहे वो संडे के दिन कर रहे हैं, दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट, और इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चलनी चाहिए ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है और जो दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं वो ना हो सकें। अंजुमन उर्दू सहाफत जम्मू कश्मीर की जानिब से आलमी यौम आज़ादी सहाफत की मुनासबत से प्रेस क्लब श्रीनगर में एक सेमिनार मुनाकिद किया गया। सेमिनार के दौरान सहाफ़ियों के साथ माशी इस्तेसाल, पेड न्यूज़ और कश्मीर में सहाफ़ियों पर कदगन और इनकी हिफाजत जैसे मामलों पर बातचीत हुई। मुकर्रीन ने कहा कि सहाफ़ियों की बेहतर माली हालत सहाफत के मेयार की बेहतरी में मददगार साबित होती है। रियासत के सरकर्दा सहाफ़ी सईद मलिक मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक रहे। मरहूम सहाफ़ी शुजात बुखारी को खराज अकीदत पेश किया गया। लेकिन सहाफ़ियों के साथ जो माशी इस्तेसाल किया जा रहा है उस पर आज तक बात नहीं हुई है, तो हमने आज इसीलिए इस मौजू का इंतखाब किया ताकि सहाफ़ियों की माशी हालत पे भी बात हो, उनके रोज़मर्रा के कामकाज पे बात हो, उनकी तनख्वाहों पे बात हो, उनको मिलने वाली दीगर मुराद पे बात हो। क्योंकि जब एक सहाफ़ी को ये तमाम मुराद मिले जो हुकूमत ने भी उनके लिए मुख्तस कर रखी हैं, तो वो बेहतर सहाफ़त कर सकता है और इसके नतीजे में सहाफ़त का जो मयार है वो खुद ब खुद बेहतर हो सकता है। 19 हमारे सहाफ़ी आज तक काम करने के दौरान मारे जा चुके हैं मुख्तलिफ़ एजेंसियों की जानिब से, और मुसलसल हमारे सहाफ़ी अज़ाब व अताब के शिकार किए जा रहे हैं, सहाफ़ी गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। पैलेट की वजह से भी हमारे कुछ सहाफ़ियों की आंखें ख़राब हो गई है। तो ये जो अताब का सिलसिला है ये जारी है। एक तरफ से आज़ादी सहाफ़त की बातें हो रही है, लंबी लंबी तकरीरें हो रही हैं, लेकिन अमली सतह पर जब हम देखते हैं तो सहाफ़ियों की आज़ादी और सहाफ़त की आज़ादी बड़ी हद तक महदूद कर दी गई है। 16 साला मोहम्मद हुसैन की पहली नॉवल मैन ऑफ द ईयर का श्रीनगर में रस्म इजरा किया गया। मोहम्मद हुसैन 10वीं जमात का तालिब इल्म है। हुसैन ने इस नॉवल में एडोल्फ हिटलर की जिंदगी के आखिरी अयाम का हवाला देते हुए लिखा है कि किस तरीके से जंग तबाही मचाता है। मोहम्मद हुसैन मुस्तकबिल में कश्मीर की तारीख पर कलम उठाने का आज़म रखता है। किताब द मैन ऑफ द राइट लिखी है हिटलर के आखिरी दिनों के ऊपर, कि आखिरी दिनों में हिटलर अपने बंकर में कैसा था, उसका रिएक्शन कैसा था, वो अपने जर्नल्स के साथ कैसा बिहेव करता था। और इसका मेन कैरेक्टर मैंने लिeutenant हैंस फर्ड्रिच रखा है जो हिटलर का बहुत ही क्लोज वन। मैंने इस बुक को मार्च के महीने में लिखा, और वैसे उतनी लंबी बुक नहीं है, एक शॉर्ट नॉवलेट है। मैंने इसे कंप्लीट किया, और मेरे बाकी फर्दर प्रोजेक्ट्स भी है जैसे कश्मीर के ऊपर लिखना और बाकी स्टोरीज लिखना। डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन बडगाम की जानिब से सनूर कुली पूरा मागाम में कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों में मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों के 200 लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। पहली पोजीशन IEI स्कूल ने हासिल की, जबकि दूसरी इकरा इंटरनेशनल स्कूल कान्हामा और तीसरी शाहीन पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने हासिल की। खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। कराटे मुकाबलों को देखने के लिए शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी।
थी, मैंने यहाँ पे गोल्ड निकाला और मैं सब लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप भी इस गेम में आओ कि मतलब हम मेरी तरह इस गोल्ड को निकालो, ये आपका फ्यूचर है। मेरा ख्वाब है कि मैं इंटरनेशनल में भी गोल्ड निकालूं। आज मैंने यहाँ पे मेडल जीता है कराटे में, मुझे बहुत ही एक्सपोजर मिला है, मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं ओलंपिक्स में भी इसमें जाना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहता हूँ इसमें। ये बहुत ही अच्छी गेम है कराटे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने पापुर के लालपुरा, मेज, चंदहार, शार, लिधु और कदलबल पापुर का दौरा करके वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद किए। उन्होंने वर्करों से कहा कि वो पार्टी को मजबूत बनाने में अपना रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि बॉयकॉट मसले का हल नहीं है, बल्कि लोगों को वोट देकर सही नुमाइंदे को मुंतखब करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की मुमकिन हो सके। डोडा जिला के 2 गांवों थानेहाला और गनूरी में फौज की जानिब से सोलर स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम किया गया। न्यूज 18 उर्दू ने इस मामले पर रिपोर्ट नश्र की थी और लोगों की मुश्किलात को उजागर किया था, जिसका नोटिस लेते हुए फौज की राष्ट्रीय राइफल्स ने प्रोजेक्ट सद्भावना के तहत गांवों को रोशन करने का बीड़ा उठाया और दोनों गांवों में सोलर लाइट्स नस्ब करवाई। गांव वालों ने फौज से इजहार तशक्कुर किया है। जानवरों का डर भी था, हमें अंधेरे में अंदर बाहर निकलने का बहुत मुश्किल होता है, तो आज के बाद हम कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, कोई कुछ नहीं कि लाइट हो गई है। अपने मैं जब पढ़ती थी तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाता था याद करने में। आज के बाद मैं आपका शुक्रगुजार करती हूँ और इन आर्मी वालों का भी। बच्चों को सर पढ़ने में मुश्किलात आती थी और आज आप खुद देख रहे हैं रात के 10 बजे सर बच्चे बाहर बहुत खुशी से रोशनी में पढ़ते हैं। सर मीडिया की तरफ से भी ये वाला पॉइंट आया था कि इस गांव में जो है लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जानवरों का भी थोड़ा सा खौफ है रात के वक्त और लोगों को अपने घर से बाहर निकलने में भी थोड़ा सा दिक्कतें पेश आती थी। बच्चों को पढ़ने में आती थी, औरतों को काम करने में आती थी, लोगों को अपने घर से बाहर जाने में आती थी। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये वाला जब ये रिक्वेस्ट आया 4RR के पास और इन बच्चों को, औरतों को, आदमियों को हर तरीके से इनको इसमें सहूलियत मिलेगी। सब डिवीजन रामसू के इलाका नील की बड़ी आबादी बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात के हवाले से मुश्किलात से दो चार हैं। लोगों के मुताबिक इन्हें बहुत कम बिजली रहती है और बिजली फीस इनसे बदस्तूर वसूल किया जा रहा है। स्टाफ की कमी की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना है। मकामी आबादी हुकूमत की किसी भी स्कीम से मुस्तफीद न होने की वजह से मुतल्लिका महकमे से सख्त नाला है। मैं यहाँ तो ये हमारी बदकिस्मती मानी जाएगी, वरना इस वक्त तो गवर्नमेंट तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो बिजली की बहुत परेशानी है यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम है। अगर बिजली आती है महीने में एक बार हम देखते हैं, महीने का किराया हम दे ही देते हैं। पोल तो है ही नहीं, तार भी है ही नहीं। अच्छा यहाँ बर्फानी इलाका, थोड़ी सी अगर फॉल्ट कहीं आ जाए तो पूरा रामसू बंद हो जाता है। लाइनमैन है एक, हेल्पर है उसके साथ 2, तो वो कहाँ, जबकि हमारे इलाके नील के अंदर 32 स्टेशन है, 3 आदमी कवर नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जो हमने हमारा ग्रिड स्टेशन रामसू में था उसको फौरी तौर वापस करें। हमारे ये जो दूर दराज इलाके हैं इनमें इस साल हमने कोशिश की और हमारे रामबन में कदरी बिजली की हालत काफ़ी अच्छी रही। इस हवाले से हमने डायरेक्शंस दिए हैं, होपफुली उस इलाके में भी जो भी बिजली की शिकायत है लोगों को वो भी दूर हो जाएगी।